Hello student, welcome to Brainsharp classes. Today we are going to learn about chapter number 12 surface area and volume of cube and cuboid of class 9. तो सबसे पहले अपन इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है अपने पास क्यूबॉइड. अ बंडल ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर प्लेस्ड ऑन बाय वन टू अ हाइट टेक अ शेप दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड. Each face of its rectangular, therefore a cuboid is also called a rectangular solid. There are 6 faces, 8 vertices and 12 edges in a cuboid. For example, room, box and bricks etc. Opposite face of a cuboid are equal to each other. To find the surface area of a cuboid, we have to find the area of its 6 face. अब अपन इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे. Now area of the face ABCD equal to area of the face A dash, B dash, C dash, D dash equal to length into breadth. Now area of the face AD, D dash, A dash equal to area of the face BC, C dash, B dash equal to height into breadth. Area of face AB, B dash, A dash equal to area of face DC, C dash, D dash equal to length into height. Therefore total surface area of cuboid equal to 2 bracket length into breadth plus height into breadth plus length into height square unit equal to 2 bracket L into B plus B into H plus H into L equal to 2 bracket LB plus BH plus HL. तो ये अपने पास इसका एरिया का फॉर्मूला डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब. If each face of a cuboid is of the shape of a square, means its length, breadth and height all are equal, then it is called a cube. Since surface area of face of the cube equal to side square, therefore surface area of 6 face of the cube equal to 6 into side square. Therefore total surface area of a cube equal to 6 into side square units. Now next topic is diagonal of cube and cuboid. A line joining the opposite vertices of two parallel faces of either cube or cuboid is called diagonal. There are 4 diagonals in a cube or cuboid. Length of diagonal of a cuboid equal to root of length square plus breadth square plus height square equal to root of L square plus B square plus H square. And length of diagonal of a cube equal to root of length square plus length square plus length square equal to root of 3 into length of side equal to a root 3 units, where a is a side of cube. Last topic is volume of cube and cuboid. We know that solid object occupies some space. Measure of this occupies space is called volume of the object. If object is hollow, then it can be filled with air or liquid. This liquid takes shape of that object. In this condition, the amount of liquid filled inside the pot is called the capacity of the liquid. Capacity of a pot is the volume of the liquid that can be filled inside the pot. Its unit is cubic unit. Volume of cube and cuboid can be found by following formulas. Volume of cuboid equal to length into breadth into height cubic unit. Therefore volume of cube equal to side की power 3 cubic unit. These are some topics related to this chapter. Now we move question of this chapter. Exercise number 12.1. क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में अपन सीख चुके हैं. अब इसके कुछ फॉर्मूलाज जो इसमें यूज आएंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं. इफ द साइड ऑफ अ क्यूब, जो क्यूब है अपने पास उसकी साइड क्या है, ए है, ठीक है. then total surface area of cube क्या होगा, 6a स्क्वायर होगा. क्यों होगा, क्योंकि अपने पास जो क्यूब होता है वो इस सेट में होता है. ये क्यूब है, इसमें इसका जो ईच फेस होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर के सेट में होता है. और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. ये एक है, इसका एरिया कितना है, साइड इंटू साइड. इसका एरिया है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड. अब ऐसे कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर. वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब. डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a रूट 3, मतलब साइड रूट 3.
एक इसको माना है अपन ने इसकी क्यूब की साइड को। इसी तरीके से सेकंड आता है अपने पास में क्यूबॉइड के लिए। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो ये क्यूब की लेता है, आप क्यूबॉइड ले आता है। इफ लेंथ इज एल, लेंथ को अपन ने एल माना है, ब्रेड्थ जो इसकी उसको बी माना है, एंड जो हाइट है उसको क्या माना है, एच माना है ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2LB BH HL, इनके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूले को आपको इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले 2 लिखा, ठीक है, L B और H को लिखना है हमने को, लेंथ विड्थ और हाइट को। तो सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे L और B लिख दिया, L भी लिख दिया है, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, B के बाद क्या आएगा BH, उसके बाद BH, और उसके बाद क्या बचा HL। इस तरीके से आपको रिपीट करते हुए इसको लिखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इसका जो थर्ड पॉइंट है वो कुछ इसके यूनिट्स हैं, रिलेटेड है, वॉल्यूम से देखते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 लीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर या फिर 1 किलोलीटर। तो इस तरीके से इसकी कुछ यूनिट्स है जिसमें काम आएगी। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज 12.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 12.1 का, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वुडन बॉक्स 1 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। तो आपको इसमें L B और H की वैल्यू दे रखी है और आपको आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले देंगे आउटर सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में, बट एक इसमें मीटर में। तो या तो तीनों मीटर में होनी चाहिए या फिर तीनों सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखते हैं 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब वैल्यूज पुट करते हैं तीनों की, लेंथ ब्रेथ और हाइट की। तो यहाँ से L इंटू बी, L की वैल्यू है अपने पास, लेंथ कितनी है 100 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 40 एंड प्लस 40 इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है अपने पास में 6000 प्लस 6 4 24 एंड 2 0 है 1 over 20 यानी कि 2400। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना मिलेगा 4000। इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद अपने को मिलेगा इसका आंसर 12400। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा 00842। ये सब अपने पास सेंटीमीटर में था, इसलिए इसका जो आंसर आएगा किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 24800। अब देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में होगा और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि आपने को पता है कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/100 करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर यहाँ भी करना पड़ेगा स्क्वायर, यानी किससे डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। तो इसको 10,000 से डिवाइड करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 के बाद डेसिमल लगाना है, यानी क्या लिखेंगे 2.48 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द मेजर ऑफ अ बॉक्स आर 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक द कवर ऑफ बॉक्स। इस बॉक्स के लिए कवर बनाना है तो उसके लिए कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा, क्लॉथ लगेगा, ये कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ बॉक्स आर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों किस में अपने पास सेंटीमीटर में। देयरफॉर एरिया ऑफ क्लॉथ नीडेड फॉर बॉक्स कवर, उस बॉक्स कवर के लिए कितना एरिया लगेगा, इक्वल टू क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, उस बॉक्स का सरफेस एरिया। फॉर्मूला लिखेंगे 2LBBHHA, तीनों के बीच में प्लस का साइन, 2 वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि तीनों सेंटीमीटर में एक ही मेजरमेंट एक यूनिट में है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1200 600 800 ऐड कर देंगे 2600 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इतना उसके लिए क्लॉथ रिक्वायरमेंट रहेगा। ये अपना इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ अ रूम इज 5 मीटर। लेंथ की वैल्यू दे रखी है अपने को 5 मीटर, तो एल की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, बी की वैल्यू 3.5 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन द 4 वॉल्स। उसको सिर्फ 4 वॉल को वाइट वॉश करना है एंड रूफ, एक रूम है उसकी रूफ और उसकी 4 दीवारों को क्या करना है वाइट वॉश करना है एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपीज लगते हैं। तो सबसे पहले एरिया 4 वॉल, 4 दीवार और एक रूफ का एरिया निकालना है। टोटल का नहीं निकालना है क्योंकि उसने बोला है कि जो बॉटम है उसका उसको व्हाइट वॉश से नहीं करना है, सिर्फ 4 दीवार है और एक क्या रूफ है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड रूफ ऑफ द रूम। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला ये होता है 2L + B × H। ये मैंने आपको नहीं लिखवाया था, मतलब इससे पहले नहीं बताया था, अब बता दिया, सॉरी। 4 वॉल्स 2L + B × H, ठीक है। और एरिया ऑफ द रूफ, तो रूफ किस शेप में होती है अपने पास में रेक्टेंगल, रूफ होती है रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L × B। डन, दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, L की वैल्यू 5 मीटर, B की वैल्यू 3.5, H की वैल्यू है 4। यहाँ पे भी L और B की वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा 85.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप उसने बोला था कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 15 रुपीज। तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी लगेगी, तो क्या लिख देंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स एंड रूफ ऑफ द रूम इक्वल टू 85.5 × 15 से उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा 1282.50 रुपीज। ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द साइड ऑफ क्यूबिकल चॉक बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। उसकी डायगोनल की लेंथ और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबिकल बॉक्स का। क्वेश्चन नंबर है 4। तो इसमें आपको सबसे पहले इसकी साइड दे रखी है, साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स। जो चॉक बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है 6 × साइड का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इस तरीके से लिखा था मैंने 6A²। इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू A। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो 6 × A की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे 6 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा मेरे को 96 सेंटीमीटर में। तो किस में मिलेगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब सेकंड चीज आपसे इसमें पूछिए एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। इसकी जो डायगोनल है उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबिकल बॉक्स लिख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या होता है A√3। A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A की वैल्यू है 4 यानी कि 4√3। ये दोनों इसके आंसर्स हो जाएंगे। ये किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा ये, तो यहाँ पे सिर्फ साइड 1 टाइम यूज आ रही है और यहाँ 2 टाइम यूज आ रही थी, इसलिए इसका स्क्वायर काम में आया। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1014 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड कैलकुलेट करनी है, तो इसका आपको क्या करना है टोटल सरफेस एरिया गिवन है। तो लिख देंगे सबसे पहले आंसर नंबर 5, गिविंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसकी वैल्यू देखिए आपको 1014 मीटर स्क्वायर। अब अपने को इसमें से साइड कैलकुलेट करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास 6 × A²। इसको इसके इक्वल कर देंगे 1014 मीटर स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ से अपने को साइड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से A² इस 6 को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो यहाँ पे दोनों के बीच में साइन किसका मल्टीप्लाई का, तो इधर आगे बाद हो जाएगा अपने पास डिवाइड में कन्वर्ट। सोल्व करेंगे इसको, तो A² इक्वल टू अपने मिलेगा 169 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ से क्यूब रूट ले लेते हैं। दिस अप्लाइज टेकिंग क्यूब रूट, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को साइड A मिलेगी और यहाँ से क्या मिलेगा 13 मीटर। ठीक है, तो ये 13 स्क्वायर क्या होता है 169 और A क्या मान रहे हैं अपन इसकी साइड, तो ये अपने को रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है
A wooden box with lid is made of 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस वुड. इनर लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपको दे रखी है. लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपको दे रखी है. इनर ये है 1 मीटर, 65 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. ये तो है अपने पास इनर डायमेंशन ऑफ बॉक्स. इसी तरीके से आपको अब यहाँ आपको बोला है कि इफ 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है लकड़ी से बनी है, सिंस इस बॉक्स इज मेड बाय वुड ऑफ थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर. 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस की लकड़ी से बनी है, इसीलिए आउटर डायमेंशन ऑफ बॉक्स ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. क्यों कर रहे हैं कैलकुलेट? देखो इन्होंने बोला है फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कलरिंग इट्स आउट सरफेस एरिया. इसको बाहर तरफ से क्या करना है, कलरिंग करना है एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर. 15 पर स्क्वायर मीटर की हेल्प से इसको कलरिंग करना है. तो आपको कॉस्ट भी इसकी कैलकुलेट करके बतानी है. तो सबसे पहले आउटर डायमेंशन ऑफ बॉक्स निकालेंगे, लेंथ कैलकुलेट करनी है. अब देखो जो बॉक्स है उसकी इनर डायमेंशन है 100 सेंटीमीटर एल की वैल्यू. अब इस तरफ से वो जब वो बॉक्स बनाया गया होगा तो 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 सेंटीमीटर इधर, तो उसकी लेंथ बड़ी होगी आउटर के लिए. तो 100 प्लस 2.5 प्लस 2.5 दोनों तरफ उसकी क्या होगी, लेंथ की इंक्रीजमेंट, तब जाके वो क्या आएगी अपने पास आउटर डायमेंशन आ जाएगी उसकी. तो ये अपने को क्या मिलेगा 105 सेंटीमीटर उसकी लेंथ मिलेगी आउटर. ब्रीथ मिलेगी 65 प्लस 5, उसमें 5 ऐड कर दिया. ठीक है, क्यों ऐड किया? क्योंकि जो ऑलरेडी उसकी अंदर वाली ब्रीथ थी उसमें 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे ऐड करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा 5. तो अपने को आउटर ब्रीथ मिल जाएगी 70 सेंटीमीटर. इसी तरीके से आउटर हाइट मिल जाएगी. अब आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला का बॉक्स के फॉर्मूला लगाएंगे 2LB/BH वाला वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करेंगे. बट यहाँ पर अपने को जो आंसर चाहिए था लास्ट में उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपीज चाहिए. तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए, ये सेंटीमीटर में, इसलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे 10,000 से, क्योंकि यहाँ क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर. 10,000 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पर आंसर आएगा 3.57 या 57. कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, और अपना आंसर आ जाएगा 53.55 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास. ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो क्यूब का फेस है वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. इफ क्यूब इज कट, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है. ठीक है, सिंस फेस ऑफ क्यूब, जो क्यूब का फेस होता है वो किस शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, इज अ स्क्वायर शेप. देयरफॉर ए स्क्वायर क्या लिखा मैंने, स्क्वायर का एरिया. तो ए स्क्वायर इक्वल टू 100. ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, तो कितना मिलेगा मेरे को 10 सेंटीमीटर. अब आगे आपसे बोला है कि इफ क्यूब इज कट बाय अ प्लेन, एक प्लेन से क्यूब को कट कर रहे हैं, पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के अकॉर्डिंग इसको कट कर रहे हैं. ठीक है, इन 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में, तो जो नया एरिया वो बनता है अपने पास डायग्राम बनता है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करके बताना है. तो व्हेन क्यूब इज कट इनटू 2 पार्ट्स बाय पैरेलल प्लेन, एक पैरेलल प्लेन से उसको कट कर रहे हैं ऑफ बेस, देन ऑब्टेन 2 पार्ट्स विल बी क्यूबॉइड. जो 2 पार्ट मिलेंगे वो किस शेप में मिलेंगे, क्यूबॉइड की शेप में मिलेंगे. ये अपने पास एक क्यूब है, ये क्या है अपने पास एक क्यूब. जब इस क्यूब को इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन से कट कर रहे हैं, ये इसका बेस है. अब इस बेस से इसको एक प्लेन से इसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं इस तरीके से. एक प्लेन ले लिया अपन ने, मान लेते हैं ये प्लेन है, इस चीज को इस तरीके से यहाँ से कट कर रहे हैं. तो अपने को जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऊपर भी क्यूबॉइड मिलेगा और नीचे भी क्या मिलेगा, एक क्यूबॉइड मिलेगा. तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी. अब देखो यहाँ पर इसकी साइड कितनी मिली थी, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ये टोटल है अपने पास अभी 10. जब क्यूब को कट नहीं किया, ये भी कितनी है 10 है. तो इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट तो कितनी है, पहले तो 10. लेकिन अब देखते हैं क्या मिलेगी. तो जो क्यूबॉइड की लेंथ होगी, ये वाली लेंथ तो कितनी होगी 10. इसकी जो ब्रीथ होगी वो भी कितनी होगी 10. बट इसकी जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में. तो 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये है एक क्यूब का लेंथ, ब्रीथ और हाइट किसी भी एक क्यूब की. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HF. वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आंसर कितना मिलेगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है इसका एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया. इसी तरीके से दूसरे पार्ट का भी हमको टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, जो भी क्या होगा सेम होगा. तो ये अपना इसका क्या है आंसर.
क्वेश्चन नंबर 8 है अ बॉक्स विदाउट लिड। तो इसमें सबसे पहले लाइन लिखी हुई है विदाउट लिड। इसी तरीके से अपने पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें लिखा था विथ लिड। तो विदाउट लिड और विथ लिड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने पास एक क्या है, क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, जो भी अपने पास मान लेते हैं अपने पास एक क्यूब है, ठीक है, या फिर क्यूबॉइड है। तो ये क्यूबॉइड लिख लेते हैं, ये एक अपने पास क्या है, क्यूबॉइड है। अब इसमें विथ लीड का मतलब होता है कि इसके जो चार जितने भी फेसेस हैं सारे फेस काम आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसका अपर पार्ट यानी कि रूफ या फिर बॉटम ये भी काम आ रहा है, इसको बोलते हैं विथ लीड। और विदाउट लीड का मतलब होता है कि इसमें से या तो बॉटम नहीं है या फिर रूफ नहीं है, एक चीज नहीं है, दोनों में से एक चीज नहीं है। मतलब जिससे मान के चलते हैं कि ये वाली चीज इसमें अवेलेबल नहीं है, रूफ नहीं है, सिर्फ ये क्या है, बॉटम ही इसमें है। तो इसको बोलेंगे अपन विथ आउट लीड, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में अपने को बोला है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 और 8 दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास एग्जाम में आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अ बॉक्स विदाउट लीड इज मेड ऑफ 3 सेंटीमीटर थिकनेस, 3 सेंटीमीटर थिकनेस से बने हुए वुड से, उस एक्सटर्नल लेंथ उसकी अंदर बाहर वाली लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपको दे रखी है, आउटर डायमेंशन दे रखी है, एल बी और एच की वैल्यू 146 सेंटीमीटर, 116 एंड 83 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ इनर साइड। इनर साइड की हेल्प से अपने को इसकी टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले इसकी इनर डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। सिंस बॉक्स इज मेड बाय वुड, लकड़ी से बना हुआ है जिसकी थिकनेस कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको इनर डायमेंशन ऑफ बॉक्स कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बाहर वाली पता है, अंदर वाली वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। बाहर से अंदर आना तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लेंथ की वैल्यू 146 माइनस 3 प्लस 3, देखो 3 इधर से आएंगे और 3 इधर से आएंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 माइनस कर देंगे 140 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसकी ब्रीथ में से भी कितना माइनस कर देंगे, ऊपर से 3 नीचे से 3, तो 6 माइनस कर देंगे 110। अब इसकी जो हाइट है, हाइट में से सिर्फ अपन ने 3 ही माइनस की है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, इस क्वेश्चन में लिखा होता बॉक्स इज विदाउट लीड, मतलब कि इसमें एक पार्ट अवेलेबल नहीं है, यानी कि इसकी रूफ नहीं है, ठीक है, बॉक्स जो है उसका ऊपर वाला पार्ट नहीं है, तो सिर्फ नीचे वाले पार्ट में सेपरेट करेंगे, कितना माइनस करेंगे, सिर्फ 3 ही माइनस करेंगे। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, इस वाली लाइन को। इसमें से 3 माइनस क्यों किया, क्योंकि जो बॉक्स है वो किससे बना हुआ है, विदाउट लीड से बना हुआ है, मतलब कि उसका बॉटम वाला पार्ट है बट उसका जो ऊपर पार्ट है वो नहीं है, इसीलिए इसका 3 माइनस होगा, ऊपर वाले का माइनस नहीं होगा। डन। तो ये इनर लेंथ भी तो हाइट अपने पास आ चुकी है। टोटल इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पर जब बॉक्स में ऊपर वाला पार्ट नहीं है तो फॉर्मूला भी टोटल का नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, फिर क्या क्या है उसमें, जब अपने पास ये बॉक्स है, क्यूबॉइड की जैसा बॉक्स है और इसमें सिर्फ क्या क्या अवेलेबल है अपने पास, इसका ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है मान लीजिए, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, विदाउट लीड लिखा हुआ है। तो इसकी सिर्फ 4 दीवार यानी कि 4 फेसेस और एक ये वाला फेस अवेलेबल है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेंगे, 2L + B × H, ये तो हो गया एरिया ऑफ 4 वाल का फॉर्मूला, किसका, एरिया ऑफ 4 वाल, और ये L × B, ये किसी भी एक पार्ट का एरिया, या तो ऊपर पार्ट या नीचे पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है उसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रूफ या फिर एरिया ऑफ बॉटम लिख सकते हैं, या रूफ लिख सकते हैं, कोई सा भी एक पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है, जो किस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। तो अब इसके बाद इसके वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर कितना मिलेगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी ये 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो 12.2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।